Hello, children. Welcome back with the third part of financial management. Now, when we have studied what is financial management and what are the functions, what is the role of a finance manager, we are now studying what is financial planning. Generally, children they get confused with financial planning and financial management. Today we'll clear all the doubts that whether these two terms are same or they are different. So before starting with financial planning, एक छोटा सा topic which was there in the first portion of your chapter, that is business finance. What is business finance? Finance is money. Business is trading, distribution, exchange of goods and services, an economic activity to earn profit. So all the money which is required for all the business activities, that is known as business finance. Now, why business finance? Why money is required in a business? There are basically four major reasons जब हमें पैसों की जरूरत होती है. First one is to start a new business. कोई भी नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको पैसा चाहिए, whether it is fixed capital or whether it is working capital. आपको रॉ मटेरियल के लिए चाहिए, लैंड के लिए चाहिए, बिल्डिंग के लिए चाहिए, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए चाहिए. देन अगर आपका बिजनेस, यू हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस एंड यू वांट टू ग्रो फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, यू नीड मनी. आपका बिजनेस इतना छोटा सा था, अब थोड़ा सा बड़ा होते जा रहा है, पैसों की जरूरत होगी. फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड फाइनेंस. थर्ड वन, आज का द कॉम्पोनेंट, the fastest changing component of business environment is technological environment. When you want to modernize, when you want to upgrade your business, then also fund is required. And last one, diversification. Already आप एक काम कर रहे हैं और एक छोटा सा टर्न लेके एक नए काम की तरफ आप you are moving ahead towards a new venture, you need finance. So अगर क्वेश्चन आता है why finance is required in a business, please do not write for raw material, for plant and machinery. It will be an incomplete answer. You'll write it business finance is required for starting a new business, growth and expansion, modernization and diversification. Now अब ये सब चीजों के लिए हमें पैसा चाहिए. सो एक फाइनेंशियल, वी हैव डन इन द प्रीवियस वीडियोस कि फाइनेंस मैनेजर कैसे डिसीजंस लेता है. नाउ डिसीजंस लेने से पहले वॉट एवर डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी हैव इंक्लूडेड, एक फाइनेंस मैनेजर लेता है. व्हाट ही डज, ही प्लान्स. व्हाट इज प्लानिंग? थिंकिंग इन एडवांस, पहले ही सोच लेना. अभी तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं. What you are planning? I want to score 90% and above in board exams. What are you planning? You will plan all the activities according to your objective. So financial planning is deciding in advance कि मेरे बिजनेस को कितने पैसों की जरूरत है, कितने फंड्स की जरूरत है, ये फंड्स आएंगे कहाँ से. क्या कहीं ऐसे तो नहीं कि मैं पैसा तो अरेंज कर रहा हूं तो थोड़ा सा कम अरेंज कर लिया, दैट इज शॉर्टेज. कहीं ऐसा तो नहीं मैंने प्लान ही नहीं किया, मेरे पास सरप्लस आइडल फंड्स अवेलेबल है जो मेरे बिजनेस पे कॉस्ट को ऐड ऑन करेगा. सो when we talk about financial planning, it is a blueprint of an organization. Which blueprint? Financial blueprint. आप देखते हो ना, आप अगर आप अभी बोर्ड के एग्जाम से सैंपल पेपर सीबीएसई का आया तो उसमें इट वाज रिटन नंबर ऑफ 1 मार्क क्वेश्चंस इतने, 3 मार्क्स के इतने, 4 मार्क्स के इतने, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस इतने. व्हाट इज इट? दिस इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ योर बिजनेस स्टडीज, ऑफ अ पेपर. अब ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ब्लूप्रिंट है. These are the activities.
ये एक्टिविटीज को हमको परफॉर्म करना है, इतने इतने पैसों की जरूरत है, ना तो मेरे बिजनेस में पैसों की कमी होनी चाहिए और ना ही मेरे बिजनेस में पैसा आइडल पड़ा होना चाहिए जिसको मैं यूज नहीं कर रहा हूं। अगर शॉर्टेज है, यू विल नॉट बी एबल टू अचीव योर टारगेट। सरप्लस है, पैसों का यूटिलाइजेशन किया नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे आपको डिविडेंड और इंटरेस्ट देना है, इट विल बी अ लायबिलिटी, इट विल ऐड टू योर कॉस्ट। Idle funds always is a burden on the company. So, what is financial planning? It is a blueprint of an organization. Which blueprint? Financial blueprint. Financial planning दो बहुत बड़े बड़े टर्म्स पे रुका हुआ है. One is quantum and the other is timing. What is quantum? Quantum is quantity of funds. What is timings? Whenever it is required, whether it is available or not. आपको पैसा आज चाहिए, आपको पैसा 15 दिन बाद मिलेगा, नो वैल्यू। मुझे 12th क्लास पास करना है, इस साल के बोर्ड के एग्जाम्स को देके, ना कि 2, 4, 5 साल में मैं पास करता रहूंगा, it will be of no value. So, एक business organization में quantity of funds, no shortage, no surplus. ये S for shortage, S for surplus. दोनों में से चीज जो दोनों भी अगर में से एक भी एग्जिस्ट कर गई, it is a financial shock. एक शॉक लग जाएगा आपको, ये पैसा मैंने लिया कहाँ, मेरा कहां पर प्लानिंग फेल हो गया, जहां पर मुझे पैसों की जरूरत है बट इट इज नॉट अवेलेबल, जहां पर मुझे पैसों की तो इतनी सी जरूरत थी पर मैंने इतना सारा ले लिया। नो वेस्टेज शुड बी देयर। एंड टाइमिंग्स, आज मुझे जरूरत है तो आज अवेलेबल है या नहीं है, ना मैं पहले ले सकता हूं और ना मैं बाद में लूंगा। जिस टाइम पे मुझे अवेलेबल लिक्विडिटी है या नहीं है आपके पास फंड्स की, that decides financial planning. So, quantum, quantity of funds at the right time, that is timings, that is financial planning. Thinking in advance, how I'll arrange, how I'll utilize, how will I distribute. Financial management का पार्ट हमने किया, पर whenever you are thinking, ये पैसा आएगा कहाँ से, मैं कितना फंड्स करूंगा, अरेंज करूंगा, फाइनेंशियल प्लानिंग. सो whenever we talk about financial planning, it includes 4 major activities in a business. First one, it formulates financial objective. मुझे कितने पैसों की जरूरत है, what is my objective? Second, formulation of financial policies. आप अगर अब जो पैसा अरेंज कर रहे हैं, what is the policy behind it? Third one, ये पैसा आएगा कहां से, ओनर्स फंड से या बोरोड फंड से, determination of various sources of fund. And last one, to determine the capital structure of an organization. कि कितना डेट एंड कितना इक्विटी. सो व्हाट डज फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड? 2 फॉर्मुलेशन, 2 डिटर्मिनेशन. फॉर्मुलेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, फॉर्मुलेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज, डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ये चारों चीजें एक फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड करता है, एंड इट गिव्स राइजेस टू द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. फर्स्ट वन, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड. जब पैसों की जरूरत हो, फाइनेंशियल मैनेजर यहां वहां अगल बगल ना जाके, फंड्स आर अवेलेबल विथ यू,
whenever funds is required, फाइनेंस मैनेजर 2 लाख की जगह 10 लाख ना दे दे। 2 लाख का मतलब 2 लाख, 2 लाख से कम भी नहीं मांगता, 2 लाख से ज्यादा भी नहीं चलेगा। It will be the amount which is required whenever it is required. It should be available. Financial planning ensures that कि जब आपको पैसा चाहिए होगा उसी टाइम को आपको उतना ही अमाउंट आपको मिलेगा। Second one, to design the capital structure. Obviously, last videos में हमने किया right from the beginning of this chapter. मैं बार बार बोल रही हूँ हम पीछे टेबल की तरफ जाए। Children, जिन्होंने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा, आई वुड रिक्वेस्ट देम कि एक फर्स्ट वीडियो का जो हमने टेबल किया था जहां पर हमने ओनर्स फंड और बोरोड फंड, वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड किए थे, जस्ट गो बैक, यू विल फाइंड कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, कितना डेट का रेशियो और कितना जो है इक्विटी का रेशियो। नाउ विच आर द ट्विन ऑब्जेक्टिव? टू एंश्योर availability of funds whenever it is required, to design the capital structure. Now that means एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। According to the nature, according to the size of the business, according to the growth opportunity, according to the risk involved with your business, you design your capital structure. सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इज नॉट इनफ, लिक्विडिटी ऑल्सो मैटर्स। आपका मोटिव जो टू मैक्सिमाइज ओनर्स वेल्थ है, उस टारगेट से भी हमें नहीं हटना है। सो एक ब्रॉड जितनी भी एक्टिविटीज है, financial activities, to plan for that, we go for financial planning. So what is the importance of financial planning? First one, it helps in forecasting. Forecasting means planning is always futuristic. You think in advance. Whatever we have already achieved our goal, we never think about that. We never look back and think कि हमने इतना टारगेट मुझे कंप्लीट करना था, मुझे 20 यूनिट्स जो है वो टीवी बनाने थे, अब मैंने बना के मार्केट में बेच दिया। यू विल नॉट गो बैक। फ्यूचरिस्टिक, आगे मुझे क्या करना है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज आगे के बारे में सोचना है, आज सोचूंगा आगे उसका आउटकम निकलेगा। सो हम फोरकास्ट करते हैं कि इतने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, अगर कोई थ्रेट हुआ, अगर कोई हमारे लिए सर्कमस्टांसेस अनफेवरेबल हुए, मैं अपने बिजनेस को कैसे हैंडल करूंगा। ऑल द थ्रेट्स, ऑल द अपॉर्चुनिटीज, उसके लिए हम फोरकास्ट करते हैं। दैट इज इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग कि मुझे बिजनेस को चलाने में कितने फंड्स की जरूरत है। Second one, it helps in coordinating various business functions. We know कि एक बिजनेस को करने के लिए बहुत सारे फंक्शंस हैं, इंक्लूडेड है। Which are those functions? अगर हम बोलेंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, एक बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एवरी एक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग लोग, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग लेवल्स पे काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सामने है, बगैर पैसों के काम नहीं हो सकता है। एवरी एक्टिविटी इज एसोसिएटेड विथ मनी. So to coordinate all these activities, to coordinate all the functions of business, we need money, and that is what a financial manager plans कि एक परचेज डिपार्टमेंट को कितने पैसों की जरूरत है। अगर परचेज डिपार्टमेंट को फंड ना दिया तो प्रोडक्शन कैसे होगा, प्रोडक्शन को रिक्वायरमेंट ना पूरी करी तो सेल कैसे होगा, सेल की डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट जो है उसको ना पूरी करी मार्केटिंग कैसे होगी। ईच एंड एवरी एक्टिविटी रिक्वायर्स फाइनेंस, ईच एंड एवरी एक्टिविटी रिक्वायर्स मनी। इसके लिए प्लान करना इन एडवांस, thinking in advance, here we are and here we want to go, this is my objective, this is my financial objective, मुझे इतने पैसों में ऐसे ऐसे यूटिलाइज करना है, ऐसे ऐसे मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ईच एंड एवरी एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, उसके लिए सोचना एडवांस में, पहले से ही। इफ whenever we
परफॉर्म सर्टेन एक्टिविटीज, आप रैंडमली कोई चीज नहीं करते हो. यू हैव अ टारगेट इन फ्रंट ऑफ यू. उस टारगेट को अचीव करने के लिए एक जो है यू परफॉर्म ऑल दीज एक्टिविटीज. एक फाइनेंस मैनेजर का टारगेट इज टू मैक्सिमाइज ओनर्स वेल्थ. आपने देखा ना वो अर्जुन जो है वो फिश की आंख पे जो है वो तीर मारता है तो उसे कुछ नहीं नजर आता है, सिर्फ आई नजर आती है, आंख नजर आती है. सो एक फाइनेंस मैनेजर का जो तीर है वो कहाँ लगेगा? इक्विटी के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना. फॉर दिस ये आंख के ऊपर जो तीर लगना है उसके लिए एक फाइनेंस मैनेजर वर्क करता है, प्लान करता है. मुझे कैसे कैपिटल स्ट्रक्चर में फॉर्म करूंगा, कितना मेरा ऑन ओनर्स फंड, कितना मेरा बोरोड फंड रहेगा. सो टू इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग बिजनेस फंक्शन. नेक्स्ट, अगर हमने प्लान अच्छे से किया, व्हाट विल हैपन? ना शॉर्टेज रहा ना सरप्लस रहा, वेस्टेज रिड्यूस होगा, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स खत्म हो जाएगा. व्हेनेवर वी यूज द टर्म वेस्टेज, रिड्यूस होगा, डुप्लीकेशन खत्म होगा, will lead to optimum utilization of financial resources. ये टर्म हमारे लिए reduces wastage and duplication of effort. हम अभी तो फाइनेंशियल प्लानिंग किससे रिलेटेड कर रहे हैं, पर पूरे बिजनेस स्टडीज में जहां भी ये टर्म आया, what does it lead to? It leads to optimum utilization of resources. Here we will say it reduces wastage and duplication and it will lead to optimum utilization of financial resources. Then it links present with future. आज मुझे पैसों की जरूरत, आज मैं प्लान कर रहा हूं, जब मुझे जरूरत होगा फ्यूचर में तो मैं फाइनेंस मैनेजर प्रोवाइड करेगा, टारगेट अचीव करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. What are we doing? We are linking investment decision with financing decision. That is what is it links present with future. And last one, it facilitates financial control. What is the meaning of financial control? C for control, C for comparison. What is the comparison? जो मैंने प्लान किया वो मैंने अचीव किया या नहीं किया. प्लान्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करना कंट्रोलिंग में हमने किया है फर्स्ट बुक में. Whenever the word control comes, that means जो हमने प्लान किया उसके अकॉर्डिंग हमने अचीव किया या नहीं किया. When we say financial control, जो मेरा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव था वो मैंने अचीव किया या नहीं किया. What was the objective? To maximize owners' wealth. So children, this is what is financial planning. It is a blueprint of an organization. It decides the quantum and the timings in an organization. किससे related? Finance से related. Finance क्यों चाहिए? To start a new business, modernization, expansion and diversification. Which are the 4 activities financial planning involve करता है? Formulation of financial objective, financial policies, determination of capital structure, determination of various sources of funds. Which are the 2 objectives? Ensure availability of funds whenever it is required. Design the capital structure. How does it help? It helps us. How does it help? Shocks को absorb करता है. No shortage, no surplus. Present को future से relate करता है. सारे business activities को coordinate करने का काम करता है और एक financial control को facilitate करता है. So children, this is what is financial planning. In the next video, in the next class, I'll discuss capital structure with the numerical part, financial leverage, which is very, very, very important. And I hope जितना भी मैं explain कर रही हूँ आपको अच्छा लग रहा है. I would request you all कि आपका कुछ suggestions या कुछ आपके कुछ doubts हैं. Like मैंने first video में कहा था कि it is a doubt clearing channel. अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है, कोई टॉपिक ऐसा है यू वांट मी टू रिपीट, कोई ऐसा डाउट है किसी टॉपिक पे, यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी. आप
and I'll make sure I'll clear your doubts. So that's all for today. Thank you and have a nice day. And please do like, share, and subscribe. Thank you.